very warm welcome to the Black Hole. As you can see on my back, a beautiful artwork and the title of today's discussion, Dandelion Blooms, The Evolution of Islamabad. Well, it is a book, a first-hand account of how Islamabad has evolved over the years since its inception in early 90s, early 60s, I guess 1961. We are very grateful to have सऊद मुख्तार साहब विद अस, मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए, जिनकी ये किताब है. मैं इनका मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊँ. Saud Mukhtar works in the developmental sector and has around 25 years of experience spanning the financial, engineering and consulting sectors with both national and multinational organizations. Saud holds a bachelor's degree in civil engineering from UET and an MBA from LUMS. ये जो किताब है ये एक एनेक्डोटल एविडेंस है. इस्लामाबाद जो है इन 5-6 दिहाइयों में किस तरह इवॉल्व हुआ है और इसकी तफसील जो है ये आपको इस गुफ्तगू में ही पता चलेगी. और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं. मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है आयशा सरवरी, जो आज के सेशन की मेज़बानी और मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभाएंगी. शी इज़ अ पब्लिक स्पीकर, वीमेंस राइट्स एक्टिविस्ट एंड को फाउंडर ऑफ Women's Advancement Hub. Moreover, she is the author of, I guess, 2 books on women's right and feminism. आप बाकायदगी से लिखती हैं, मिसाल के तौर पे द इकोनमिस्ट, द गार्डियन, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, NPR एंड BBC वर्ल्ड सर्विस. यहाँ आपकी तहरीरें जो हैं वो शाया होती रहती हैं. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. हमेशा की तरह जब हाउस ओपन हो, बाहमी गुफ्तगू के बाद फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, तबसरा, सवाल, अपनी राय देने के लिए, तो आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए और फिर आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक भी जा सकेगी. तो यही थी 2-3 बातें. प्लीज़ वेलकम सऊद मुख्तार एंड आयशा सरवरी. थैंक यू. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम आप सबका. आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एट the Dandelion Blooms launch, जहाँ पे हम सऊद से बात करेंगे. So without further ado, Saud and I have a couple of things in common. सबसे पहले तो we have a common friend, Umar Riaz Chima, who introduced us. Secondly, we both, initially our ancestry or our family came from Karachi. So we have that in common. And the third thing is I think we both have an interest in Islamabad. I've stayed and lived in a lot of countries around the world, including Africa, the US, etc. But Islamabad is one of those places I actually would like to call home, even though there's nothing here. My relatives aren't here. My in-laws are in Lahore. My family belongs to Karachi, and my mother's side of the family belongs to India. But there's something about Islamabad that allows me to have this very melting pot feeling. And I'm so glad that there is a book about it that gives me a bit of an understanding about why I should love this city. सो सऊद, सबसे पहले मैं आपको ये सवाल पूछूंगी कि आपकी अम्मी ने, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा आपके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस डाली होगी अबाउट इस्लामाबाद. सो शी केम एंड माइग्रेटेड इनटू द इस्लामाबाद दैट वाजंट इन द 60s. Can you tell me a little about your mom, particularly how she was, what her personality was, and what are some of those anecdotal things that connected her to the city and you to the city? Because they keep calling places fatherlands, but I think it is the mom that makes you wedded and rooted to your land. Thank you very much. Thank you everyone for your patience and waiting for the event to start. So I think my mom basically prompted that the whole concept of storytelling, because she used to tell us a lot of stories about how Islamabad was. And when capital shifted from Karachi to Islamabad, my nana used to work in the government sector, so he got transferred and got posted in Islamabad. And my mother would have been in grade, I think 9th or 10th when she moved here. And obviously those were the early days of Islamabad. चीज़ें भी बन रही थी, and then everything was brand new. And then all of those people जो कि कराची से यहाँ आए थे, they felt like in a ghost town, कि यहाँ लोग कम थे और वो कहती हैं कि गीदड़ ज़्यादा होते थे और हम शाम के बाद ज़रा मोहतात होते थे कि घर से बाहर ना निकलें. तो आई थिंक दैट बेसिकली प्रॉम्प्टेड मी. और उनकी काफ़ी कहानियाँ थी. एक बस जाती थी इस्लामाबाद से
Rawalpindi, and that was a sort of only connection between the two cities, and that also used to stop around. And जब sunset होता है तो उसके बाद there wasn't any more buses. Double decker buses थी. Then it was a very 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 small community. Everyone used to work in secretariat. So those were the sort of earliest days which obviously I haven't seen. तो अभी आयशा वाज आस्किंग मी कि आपकी अपनी रिकलेक्शन कब से हैं, तो आई सेड 80 ऑनवर्ड्स. देन आई एक्चुअली रिमेंबर कि इस्लामाबाद कैसा था, बट उससे पीछे वाली जो 64 टू 80 का टाइम पीरियड है, ऑब्वियसली दैट्स द होल रिकलेक्शन बाय माय मदर. सो आप ये भी बता रहे थे कि जब आपकी अम्मी साड़ियाँ पहनती थी, लाइक द पीपल हियर थॉट इट वाज something very brilliantly new. They couldn't wrap their heads around it. I think a lot of people, obviously the people who came from Karachi, they had their own sort of way of living, whether that was dressing, mingling with others, or the overall attire. तो वो कहती हैं कि जब हम जाते थे तो वो क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो पीपल यूज्ड टू से कि यार ये कौन सी मखलूक आ गई है जो है ना, एंड वेयर आर दे गोइंग एंड व्हाई आर दे walking on their own. Even now, I only know 3 women who wear saris in Islamabad. Yeah, it's not one of those things that, but you know, the who predominantly made Islamabad what it is when you look at migration patterns. I know Karachi is predominantly there's KP. What are the top 3 or 4 migration patterns that brought people to Islamabad, which was a small village from what I understand? आई थिंक इसमें सबसे पहली जो लोग आए वो तो कराची से ही आए, इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली द पीपल हु यूज्ड टू वर्क देयर एंड देन गॉट पोस्टेड हियर. फिर 71 में जब व्हेन बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट, आई थिंक अ लॉट ऑफ बंगाली फैमिलीज मूव्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद. उसके बाद फिर अगर आपको याद हो अर्ली 90s में जब हालात कराची के ख़राब हुए तो फिर कराची से काफ़ी लोग आए. उसके बाद ये वॉर अगेंस्ट टेरर वाला जो टाइम था उसके अंदर आई थिंक काफ़ी लोग केपी से इस्लामाबाद में आए. फिर जो ये डेवलपमेंट एक तो सेक्टर जब सिटी ज़ाहिर एक्सपेंड हुआ तो आई थिंक 2000 के अराउंड टेलकोज काफ़ी आई, तो लाहौर से काफ़ी लोग हु यूज्ड टू वर्क इन FMCG टाइप, लॉट ऑफ आवर कॉलीग्स, तो वो लोग फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए. तो ये 4-5 बड़ी जो है ना माइग्रेशन उस तरह से शहर के अंदर हुई हैं. उससे मुझे याद आया कि हमने आई मीन पीपल इन इस्लामाबाद, हैव दे एवर आस्क्ड फॉर एन एक्सोडस? आई रिमेंबर एंड दिस इज़ व्हाई इट्स रेलेवेंट बिकॉज अभी हाल ही में हमने माइग्रेंट वर्कर्स जो अफ़गानी थे, अफ़गान वर्कर्स थे, उनको वी काइंड ऑफ एग्जिटेड देम, बट बिफोर दैट वी हैव नेवर, द सिटी हैज़ नेवर डन समथिंग लाइक दैट. बिल्कुल है, बल्कि एक ये सॉरी मैं मिस कर गया, ये जब टर्मोइल था इन अफ़गानिस्तान तो आई थिंक काफ़ी बड़ी तादाद में जो है अफ़गानी भी यहाँ आए, बल्कि इस्लामाबाद में ये जो फ्रेंच फ्राइज़ की आप छोटे स्टॉल्स देखते हैं, ये बुनियादी तौर पे इन्हीं लोगों ने शुरू किए थे. So that is one thing which they brought culturally. It was very intrinsic to Pakistan, to Islamabad in the sense that you couldn't go to F6 without having those chips, right? जी, वो चिप्स छोटे और वो जो है ना हर खोखा नुमा चीज़, तो I think that is their contribution to in addition to the construction sector, in addition to the service sector and a lot of things. So we've talked a little about your mom. Who were you as a kid? Like, were you an observant kid? Because abhi jitni aapne memories is kitab mein likhi hain, it seems like you were a bit of a nerd who used to just observe things and write them in the diary. Where did you get most of your memoir material from? Just from my sort of own memory, and then when you start writing things, I think one great thing which happens is कि आप खुद भी उससे related चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं. और इस बुक को लिखने के लिए not everything which is written in this book is my own sort of memoir. तो when I was writing this book, तो I also met a lot of old Islamabad people, and one of them is sitting right next in the sort of second row, who have seen Islamabad, and then I sort of use their anecdotal evidence into that. For example, जैसे मैंने अपारा को देखा, तो अगर मैं 5-7 पुराने इस्लामाबाद के लोगों से मिला जिसमें काफ़ी सारे लोग इस्लामाबाद में नहीं रहते, तो दे टोल्ड मी डिफरेंट थिंग्स अबाउट दैट, एंड देन आई कुड को रिलेट कि हाँ ये वाकई 2 या 3 लोग जो कह रहे हैं ये ऐसे ही था.
So you've put some anecdotes together, you've done some research. One of the things that really shocked me was 1980 mein Islamabad abadi was 4 million, around there, which is now maybe E11 sector, right, altogether. Things have really gotten out of proportion. Tell us, if we should care about Islamabad, what are the top 5 things that should make us interested in this city? Like, what have you learned that give it an identity? Otherwise, it's just one of those cities that Karachi and Lahoris hate. नहीं, आई थिंक इस्लामाबाद के बारे में एक बड़ा मशहूर कोट था जो पुराने लोगों को पता है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कहा था कि इस्लामाबाद इज़ हाफ द साइज़ ऑफ आर्लिंगटन सेमेट्री एंड ट्वाइस क्वाइटर। और यहाँ पे ये हाल होता था कि ईद पे आपको डबल रोटी नहीं मिलती थी, एंड लॉट ऑफ पीपल यूज टू गो आउट ऑफ इस्लामाबाद। बट इन टर्म्स ऑफ द 5 थिंग्स, आई थिंक एक तो ग्रीनरी इस्लामाबाद की। अगर आप इस्लामाबाद आएँ और आप पहाड़ के ऊपर ना जाएँ तो ये नहीं हो सकता। जिस तरह आप कराची जाएँ और आप समुंदर पे नहीं जाएँ, सो दैट्स द इनकम्प्लीट विजिट। तीसरा, आई थिंक जितने ऑर्गेनाइज यहाँ सेक्टर्स हैं, अगर आप F7 में हैं तो यू कैन मेक सेंस कि F8 कहाँ पे होगा। आई मीन दोज हैव बीन प्लान्ड इन अ सर्टन वे विच मेरा ख्याल है किसी और शहर में इस तरह से नहीं है। And then the kind of sense of direction within the city. So wherever you are, you can see the Magla Hills and then you can make sense. अच्छा ही अगर मैंने पिंडी जाना है तो इस तरफ होगा, और अगर टेक्सला है वो इस तरफ होगा। And another quite unique thing about Islamabad, especially Islamabad's culture, is कि बाज़ दफ़ा आपको साथ वाले जो आपके पड़ोसी हैं उनका नहीं पता होगा, you won't know your neighbor. But at the same time, if you go and meet someone socially, then you would know either him through your or her through your siblings or your parents or someone, a common friend or something. So ये एक बड़ी यूनिक इस्लामाबाद के कल्चर में चीज़ है कि वन ऑफ माई फ्रेंड यूज़ टू से कि इस्लामाबाद एक गांव है जहाँ पे हर शख्स दूसरे का जानने वाला है। So I think those are the sort of quite unique things about. My ex-boss, I think Ali Nasir is his name. So there's 6 degrees of separation. He says कि Islamabad में पौना degree of separation होती है, right? Everybody knows everybody. It is such a village. So, we're talking about anecdotes. I couldn't quite settle in Lahore for the reason that every time I tried to get to know people, सबसे पहले वो मुझे पूछते थे कि where's your zip code, where are you from, where's your home? And then the other question, if it passed that strata, they would say, do you own it or do you rent it? Right? And then if I passed that strata of inclusivity, then they would be like, what car do you drive? Which schools do your kids go to? Is your uncle a judge, or is your father in the army? So there was this multiple layers of belonging that often were tied to wealth or land or possession or ancestry. Pichho to kahan se ho, where are you from really? I didn't find that in Islamabad, perhaps because it's new, so we got an opportunity to kind of just be ourselves a little more. But आपकी book में मैं देख रही थी कि the sectors themselves might have a little bit of stratification. And the joke goes that if you're from the F sectors, you're cool, and if you're from the G sectors, you're in a gully or whatever. So talk to us about the classism or the stratification that is maybe not here but in other places, or maybe I've gotten it wrong. आई थिंक उसमें जो ये है कि शुरू का जो कल्चर था उसमें एक तरह से होमोजीनियस था ओवरऑल इन्वायरमेंट, और उसकी वजह ये थी कि एवरीवन यूज्ड टू वर्क इन सेक्रेटेरिएट, और देयर वर फ्यूर किड्स इन माय सॉर्ट ऑफ क्लास इनके पेरेंट्स से PTCL में थे या OGDC में थे, बट देयर वाज हार्डली एनी सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। दूसरी चीज़ ये थी कि इतनी डिफ्रेंसिएशन शायद F7 और G6 में उस तरह से नहीं भी थी। पीपल यूज्ड टू बी ओके विद वेयर यू आर एंड वेयर यू आर फ्रॉम, बट आई थिंक इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस होल कॉन्वर्सेशन विच इज़ ऑफ आइडेंटिटी कि आप कह रही हैं कि कहाँ से हो। आई थिंक दैट्स अ सॉर्ट ऑफ क्वाइट एन इरिटेटिंग क्वेश्चन फॉर मी पर्सनली कि अगर आप उनसे कहें जी आप कहाँ से हैं तो दे वुड, हाँ वो इस्लामाबाद के लोगों से अक्सर ये पूछते हैं कि जी आप कहाँ से, तो वो कहते हैं जी मैं इस्लामाबाद से। कहते नहीं अच्छा आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं, वो कहते जी अच्छा वो भी इस्लामाबाद से, नहीं उनके पेरेंट्स कहाँ से हैं। सो इट्स बेसिकली इंटेरोगेशन ऑफ 5 जनरेशन अनलेस एंड अनटिल यू गो आउट ऑफ, आप कहते हैं जी उससे पहले तो फिर अब इंडिया ही रह गया, तो उससे
और क्या आपको बताएं. So people have never sort of gotten hold of this thing कि कोई इस्लामाबाद में पैदा भी हो सकता है. और I mean if someone was born in 70, he's 50 years old, he's lived all of his life in Islamabad, you still don't have that kind of a belonging कि वो इस्लामाबाद का भी कोई हो सकता है. और फ्रस्ट्रेशन उस वजह से होती है कि वो अगर आप चाहे आप जाके भी लाहौर में रहें, आप कहीं कहाँ से कहीं लाहौर से, तो देयर नॉट गोइंग टू बी एनी फॉलो अप क्वेश्चंस, राइट? But for Islamabad guy or girl, so that is a sort of must for. I was in Anarkali and they had all of these city pins to put on your stuff with like rock art on it, and there was almost every city of Pakistan except Islamabad. Then I asked him, and there was Pindi. So I was like, Rawalpindi ka Islamabad ka hai, and he looked at me like, why do you need Islamabad if there's Rawalpindi, right? So talk to us about this twin city thing. What have you uncovered about the dynamics between Rawalpindi and Islamabad? Do the Pindi boys and girls really look down on Islamabad, or do they feel that we just go to Islamabad if we want like a high-end restaurant or something? I think that's a very interesting question for क्योंकि ये that was one of my questions when I started writing this book. और वो question ये था कि इस्लामाबाद में बाहर से काफ़ी लोग आए, ज़ाहिर है, और सिटी से, मगर रावलपिंडी से आई हैव सीन वेरी वेरी फ्यू पीपल हु मूव टू इस्लामाबाद. एंड तो उसका मैंने जब आई आस्क्ड क्वेश्चन, तो देन आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ देम नेवर थॉट कि देयर इज़ एनी वैल्यू एडिशन इन मूविंग टू इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद उनकी परसेप्शन के हिसाब से एक छोटी सी जगह थी जहाँ वो कभी भी जा सकते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन लिविंग राइट इन से पिंडी के एरियाज़ में, बल्कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे से कि वी हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद 20 years ago. और बिकॉज दे नेवर थॉट देयर इज़ एनी, वो इस्लामाबाद तो कभी भी जा सकते हैं. जस्ट लाइक कि हम जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं वो मरी नहीं जाते अमूमन, वो कहते हैं मरी तो हम कभी भी जा सकते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो आप कभी भी नहीं जाते. सो दैट्स अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. वो एज़ फार एज कल्चर इज़ कंसर्न, तो आई थिंक ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस्लामाबाद का और पिंडी के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. और उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि अ वाइल अगो वन ऑफ आवर सॉर्ट ऑफ, मैं और मेरा एक दोस्त था, वो उनसे मिलने एक साहब आए, तो ही मेट मी एंड ही मेट माय फ्रेंड. तो ही सेड कि दे आर कल्चरली वेरी वेरी डिफरेंट. जो इस्लामाबाद में लोग जिस तरह बिहेव करते हैं और जो पिंडी में करते हैं, तो आई थिंक give us an example. आई थिंक वो एग्ज़ाम्पल उसकी यही होगी कि वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई मिलने आता है तो आप ऑब्वियसली यू एंटरटेन हिम इन ड्राइंग रूम और समथिंग, बट शायद पिंडी में उस तरह से नहीं होता. और लॉट ऑफ टाइम ज़्यादा लोग उससे मिलने आ जाएंगे, बट हेयर इफ बिट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ secluded one-to-one meeting type stuff. So there's a bit of a difference culturally between the two cities as well. How would you describe, say, the cities जो हैं वो infrastructures, we'll come to the infrastructure, but infrastructure से ज़्यादा लोगों से बनती हैं. My family was in war-torn East Africa during the war, and my parents always say that we didn't really care about it because we had friends. So if you were to describe the milieu of what the Islamabad people are like, what would you say? I think Islamabad people are like, I would say कि they are a bit reserved, because जब मैं लाहौर में था तो हम I used to study there, और एक विंग में ज़्यादा इस्लामाबाद के लोग रहते होते थे और एक में कराची के रहते होते थे. तो उसमें फ़र्क ये होता था कि इस्लामाबाद में सब लोगों के दरवाजे बंद होंगे, you have to knock and you enter, and then whosoever you want to meet would be there. बट कराची में आप दरवाजे खुले हुए हैं जो उनके उस पर, और किसी के कमरे में कोई गया हुआ है और किसी की चीज़ें कहीं पड़ी हुई हैं. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन. और जनरली लोग उन्हें कंसिडर करते हैं कि शायद these people are proud. That's not the case. They're just maybe introverted a bit. Bit of an introvert, and unless and until someone would approach, they won't sort of initiate the conversation themselves. Let's talk about infrastructure now, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट में ये बात तय है कि अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन ऐसे की है जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, जिसमें इंसान के इमोशंस, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी कम्युनिटी सेंटर में हो,
तो वो आगे भी ऐसे चलेगा। अगर आपने कोई चीज़ ऐसे डिज़ाइन की है कि जिसमें सिर्फ खूबसूरती पे फोकस हो या सिर्फ आर्किटेक्चरल वंडर पे फोकस हो, या बाकी चीज़ें नहीं देखी, कम्युनिटी नहीं देखी, उसमें औरतों की पार्टिसिपेशन नहीं देखी, तो वो सिटी ऐसे ही लगेगी कि कुछ लोगों के लिए बनी है और कुछ लोगों के लिए नहीं बनी। इज़ इस्लामाबाद एन इंक्लूसिव सिटी इन दैट रिगार्ड? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम एन आउटडोर्स पर्सन। मैंने कभी इस्लामाबाद में क्रॉस वॉक नहीं देखी कि मैं चल के जाऊँ कहीं, पॉसिबल ही नहीं है। There's no concept of, you either have to have a car or you have to take public transport, and I'm not even sure if public transport is good enough. So do you think it's a well planned inclusive city for everybody, every kind of person? आई थिंक थोड़ा सा जो हुआ है चेंज इन द लास्ट से 20-30 ईयर्स जो मैं देखता हूँ, एक तो सिंस यू हैव टच दैट, एक तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक इस्लामाबाद पहले एक छोटा शहर था विद इन 5-6 किलोमीटर्स, और मैंने खुद क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो किया है, तो GTS की बसें होती थी। सो दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग एरिया कि इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कितने सिस्टम्स रहे हैं। तो सबसे पहले डबल डेकर बसेस थी विच माई मदर हैज़ सीन, आई हैव नॉट सीन दैम। फिर उसके बाद GTS बसेस आई हैं, उसके बाद फिर एक वारान के नाम से थी विच वाज अ मोर ऑफ अ प्राइवेट सेटअप, और फिर अब ये रेड जो मेट्रो है हमारी, वो है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन, येस देयर हैज़ बीन बिट ऑफ एन इशू, और उसकी रीज़न शायद ये है कि जब से ये शहर डिज़ाइन हुआ तो आपने जो यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है या जिसके पास सरकारी घर है उसके लिए तो ये था, मगर व्हाट अबाउट ब्लू कॉलर वर्कर? तो अब हम ये देखते हैं कि छोटी जो हैं कुछ जगहों पे, जैसे फ्रेंच कॉलोनी है या ये मेहराबाद है यहाँ से थोड़ा सा दूर, तो ये एक जगह मशरूम आउट हुई हैं जो उस तरह से प्लान नहीं थी शहर के अंदर, जो शायद एक कमी महसूस की जा रही है। ऑल्दो कि अगर आप इस्लामाबाद के शुरू के प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसके अंदर ये आपको मिलता है कि इनिशियली दे थॉट के I-9 में कुछ फैक्ट्रीज़ होंगी जो मिनिमम सोप की फैक्ट्री और जो आम आपको रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए वो बनाएंगी, और ज़ाहिर है यहाँ पे बाकी कंज्यूमर्स होंगे। सो दैट एट टाइम्स गिव्स एन इफेक्ट कि शायद उस तरह से चीज़ें एनविसेज नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। बट द गुड पार्ट ऑफ द होल इक्वेशन वाज कि हर सेक्टर में एक मॉस्क है, एक सेंटर है, पार्क है, स्कूल है, लेकिन हर सेक्टर्स में शायद अक़लियतों की representation उस तरह से नहीं है, and there is that sense of gentrification where perhaps the Christian colonies और जहाँ पे हिंदू मंदिर हैं और that kind of thing, वहाँ पे particularly आपको एक gated feel आती है, you know. So planning में did people try to make sure that there was at least some kind of ethnic religious inclusion, कि people from different faiths could go to different places? I'm not sure उस एंगल से मैंने उस तरह से रिसर्च नहीं की. It was more of a trying to meet people and trying to understand कि किस तरह चीज़ें इवॉल्व हुई या पहले कैसे चीज़ें थीं. बट उस तरह से डेजिग्नेटेड शायद नहीं थी और शायद उस तरह से उनको व्यू भी नहीं किया गया जो प्लानिंग थी उसके अंदर. जो आ जाते हैं dandelions के ऊपर, why dandelions? And I think for the kids that are here today, the wonderful children I see here today, maybe we can ask them, आपको पता है dandelions क्या होता है? क्या होता है? और क्या, like what do you do with the flower? Yeah, exactly. Yeah. So talk to us about maybe the metaphorical idea you had behind it. डेंडलाइंस असल में अगर आप जब इस्लामाबाद में बहार आती है तो आप देखें ये खुदरो होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स आपको बहुत सारे नज़र आएंगे. और कुछ अरसे बाद जब हम छोटे होते थे तो हम वी यूज़ टू ये वाइट सी जो बॉल होती है हम इसको ब्लो करते होते थे. एंड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूड माई सेल्फ डिडंट नो कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं. ये एक ही फूल है जो कि मैच्योर होके उसके बाद ये वाइट सा इस तरह से हो जाते हैं एंड देन यू ब्लो दैट. और उसी की वजह से मैंने फिर नाम इसका डेंडलाइन रखा बिकॉज दैट्स हाउ इस्लामाबाद हैज़ चेंज टू एन अनरिकग्नाइजेबल फॉर्म. क्योंकि जो इस्लामाबाद के पुराने लोग हैं दे वुड रिमेंबर सिराज कवर्ड मार्केट जिसके बगैर इस्लामाबाद जो है कंप्लीट नहीं हो सकता. अमेरिकन सेंटर
Neftex Cinema. So Maybe the अगर British British High Council Commission, Library, Council British Library. Council Library थी, American Central. So these were the two sort of places जहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग ज़रूर जाते थे. And there was a culture of buying sort of old books, old book shops उसके करीब I ही was going to थी. come to that. देखें इस्लामाबाद में जो भी आया है mostly they've been here because they're either working or they want to work or there's some kind of knowledge economy going on here. और जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो इसी तरह के तबके से आते हैं. Regardless of whether you're a student or which class you're in, reading culture है इस्लामाबाद में. I think Said book shows us that, but जो ओल्ड बुक का कल्चर है वो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं ओल्ड बुक्स हैं जहाँ पे डिप्लोमैट्स अपने बुक्स दे जाते हैं. देन देयर इज दिस रिसाइकलिंग कल्चर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वेयर इज द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल हु कम from the diplomat community or the diplomatic corps and the normal brown people? Because I think अगर हम stratification की बात करें तो one thing is very clear that there is that gated colony when it comes to the diplomatic enclave. It kind of feels like you're going into a foreign land and you have to prove your identity. So talk to us a little about that, then I'll come into the climate change part. Right. Diplomatic enclave तो उसे कहते हैं कि it's more of a sort of faceless prison these days. कि और कभी ये टाइम था कि आप यहाँ से गुज़र के जाते होते थे. all those people who used to go to Qajar University, तो that was a sort of natural pathway कि वो इसे क्रॉस करते हैं और वहाँ पे जाते थे. As far as diplomatic community generally जो शुरू में सबसे पहले एम्बेसीज आई थी वो एम्बेसी रोड पे आई थी जिसका नाम अब आई थिंक कुछ अतातुर्क एवेन्यू कर दिया है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और दे यूज़ टू वॉक टू सिराज कवर्ड मार्केट. और जो आपकी ईसा जीज़ एंड उस तरह की शॉप्स हैं कोसार मार्केट में, वो बुनियादी तौर पे पहले वहाँ पे होती थी और वहाँ पे सारा इम्पोर्टेड स्टफ़ भी आपको मिलता था. सो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन पॉइंट कि जहाँ से वो अपनी वेजिटेबल फ्रूट्स लेते थे और देन दे यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ. Okay, you skirted around it a little bit, but so how is Islamabad in dealing with crisis? Most recently, the COVID crisis that we saw. Then obviously there are your earthquakes, जब Margla Towers गिरे थे. And उससे पहले भी I think there have been a couple of earthquakes. Are they people जो कि घुल मिल के एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, community create करते हैं? Or mostly do they wait for the wave to pass, and how do they organize crisis? I think in terms of crisis अगर overall देखा जाए तो I think people are quite supportive of each other in terms of obviously क्योंकि आपके networks हैं, दोस्तों के हैं, relatives के हैं, within community है या within sectors हैं. But at the same time I think इस्लामाबाद में जो क्राइसिस शुरू से रहा है वो पानी का रहा है. सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट क्योंकि हमने उस तरह से पानी के रिजर्वायर्स नहीं बनाए यहाँ पे. तो पहला जो आपका रिजर्वायर था वो सिमरी डैम था. बल्कि आप लोगों को हैरानी होगी सुन के कि सबसे शुरू में जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट थे वो एक्चुअल मिनरल वाटर पीते होते थे, स्प्रिंग वाटर. और ये जो अभी गंदे नाले हैं जो जहाँ पे चीज़ें फेंकी जाती हैं, मैंने सुना है कि दोज यूज्ड टू बी द ओरिजिनल वाटर. जी. और वो वहाँ से बल्कि जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अर्लीस्ट 60s के, उन्होंने कहा था कि फॉर नेक्स्ट 5 years सो यहाँ पे जितनी आबादी होगी उनको हम यहीं के स्प्रिंग से ही वो पानी देंगे. So that's how sort of was the equation between how many people are going to live here and what kind of natural resources we have. कराची में भी आई थिंक पानी के प्रॉब्लम्स से ही लोग तंग होके दे केम टू अ ग्रीनर पार्ट ऑफ द कंट्री. बट वी सी नाउ दैट विद CDA आई एम नॉट श्योर हाउ मच वी आर इन्फोर्सिंग वाटरशेड मैनेजमेंट और ट्री कटिंग मैनेजमेंट. आपको लग रहा है कि उस रेट के ऊपर हम अपनी कंजर्वेशन कर पा रहे हैं दैट दिस सिटी डिजर्व्स? नहीं, आई थिंक एक तो सिटी हैज़ एक्सपेंडेड टू मच. उससे पहले जो इस्लामाबाद का कॉन्सेप्ट था वो अब यूँ समझ लें कि जो कश्मीर हाईवे की दूसरी तरफ था. अब तो आप यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे चले जाएं तो पीपल स्टिल क्लेम कि ये भी इस्लामाबाद है. तो आई डोंट नो विच इस्लामाबाद आर यू टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ज़ाहिर है समवन लिविंग एट क्लोज टू रवात आल्सो क्लेम्स कि ही वो इस्लामाबाद में रहते हैं. There should be a closed group community that allows people to come into Islamabad and they but South thank you. Let's answer this question. Ke real estate agents, did they break this city? Like who broke this city? Like you have
you know, these concepts of taking land जो कि probably काफ़ी हरे हैं, you know, fertile land है, and then you kind of DHAize those, Bahria townize those lands. How are we, you know, protecting these lands for these kids in the future? Because very soon ना पानी होगा, ना आपके पास आपका food basket होगा. So who's thinking about all of these things in the government? I think एक तो lack of broader planning है इस्लामाबाद में. People voices have they don't really उस तरह सा मेयर सिस्टम या कोई हमारे यहाँ mechanism नहीं है. अमूमी तौर पे जो हमारे यहाँ ऐसे still controlled by the government by appointing a chairman CDA or someone. तो एक तो वो इसका एस्पेक्ट है कि people's voices are not really being heard. But the second part is कि now the city has grown so much कि उसके problems भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं. अब मतलब there was a time कि इस्लामाबाद के problems और पिंडी के problems were different. Now ये जो अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो that area is a combination of both Pindi and Islamabad. So itself it's a very big piece of land, and then you obviously need to have a lot of sort of resources in terms of pani, housing, infrastructure, security. So It sounds like no one's thinking about it. Perhaps. Right? Yeah. So I would like to open the floor for questions, but just one more, a couple of more points from you. South के top 5 spots कौन से हैं इस्लामाबाद में where you love being in? I think no one can ignore Magla. तो मागला के ऊपर जो पुराना कौन सी trail आपकी favorite है? I think trail 3, but at the same time I think a lot of people, old Islamabadis, still miss that जो पीर सुहावा था जहाँ अब मोनाल है, और it wasn't that developed, and a lot of people would remember कि रास्ते में गरंडे मिलते होते थे. There were small berries which kids used to sell. अगर आप ऊपर जा रहे हैं ना तो टर्न के ऊपर रोड इतनी अच्छी नहीं थी, और वो 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट वहीं के लोकल बच्चे तोड़ के आपको बेचते होते. which I haven't really eaten in a while. What are they, mulberries या blackberries क्या होता हाँ, है? I किसी think किस्म का इसी berry किस्म होता है. का वो था. They used to be sweet. तो एक तो वो है. दूसरा obviously रावल डैम का जो पुराना एक ऑरा था that has gone, अब वो उस तरह से अभी अगर आप जाएं तो वो it's really not that. असल में हम जब छोटे थे तो रावल डैम की भी 2 साइड्स थी. एक चीज़ जहाँ स्पिलवे है, जहाँ पे ओपन था फॉर पब्लिक, और दूसरी ये जो अब ज़्यादा डेवलप हो गई है, इट वाजंट रियली डेवलप्ड. और यहाँ पे आपको नज़र आती थी कि जो पुरानी मरी रोड है वो इसके अंदर से ही गुजर के आ रही होती थी. तो वो दैट वाज द ओल्ड इस्लामाबाद स्पॉट जहाँ पे अगर आपको वो वाइटल साइन का गाना भी शूट हुआ है. सो दैट यूज्ड टू बी, दैट्स हाउ रिकग्नाइजेबल इस्लामाबाद वाज कि ये आप देख के बता देते अच्छा ये फलां वाली जगह पे ये शूट हुआ है. So it's no more the same sort of And what about eating spots, like what, because मुझे पता है बाकी चीज़ें तो हम कह दें कि ग्रीन है इस्लामाबाद, ज़बरदस्त है, लोग अच्छे हैं, खाना नहीं हम डिफेंड कर सकते. खाने में आई थिंक जो इस्लामाबाद की सबसे पुरानी कुजीन जो कि आइकॉनिक थी वो आगा खानी समोसे थे, और वो थे जहाँ मेलोडी मार्केट में एक गोल मार्केट होती थी विच हैज़ नाउ बीन नॉक डाउन. और वहाँ पे जो समोसे थे वो कीमे के समोसे होते थे, और उस जगह का एक स्पेसिफिक चीज़ ये थी कि दे यूज़ टू ओनली सर्व 10 o'clock से लेके 5 o'clock तक, बल्कि 4:30 तक जब वो ऑफिस टाइम था, और दैट वाज द एंटायर सॉर्ट ऑफ ओपनिंग टाइम फॉर दैट उस जगह का. तो अभी भी आप वहीं जाते हैं या नहीं? आई थिंक दे हैव नॉक्ड इट डाउन. सो Yeah. दे अब तो खैर मल्टीपल अदर प्लेसेस खुल गई हैं उस तरह से. और पहला जो पिज़्ज़ा प्लेस था वो पिज़ेरिया, जहाँ पे ये अब सेवर फूड है उसके करीब एक प्लाजे में थी. I would say Kabul is also a pretty iconic Islamabad food. है. Papa Salas is quite old. और कोई big burger या burger वो था F6 में that I F6 में then there was Yummies. Mr. Chips I think. Mr. Chips is one of the Yeah. oldest. फिर अगर जो गोल मार्केट है वहाँ गोल्डन ड्रैगन, that's another. फिर वो उसमें होता था ये जो है अभी आई थिंक हॉटस्पॉट है जो ट्रेन के डब्बे में, सो दैट्स ऑल्सो क्वाइट ओल्ड. सो आई थिंक दीज आर द सॉर्ट ऑफ गो टू प्लेसेस फॉर ओल्ड इस्लामाबाद के जो लोग थे. तो
सऊद मैं आपको एंड में कहूँगी कि आप थोड़ा सा पढ़ें हमारे लिए, बट आई वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड देन वी विल यू नो जी. अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस बुक. आई डिडंट नो दैट अ बुक ऑन Islamabad existed, because if a city does not exist in literature, it simply does not exist. So I wanted to congratulate you on bringing Islamabad Yes, I on the think that world deserves map. an applause. मैं भी शॉर्ट स्टोरीज लिखने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें भी आई ट्राई कि मैं वो जगह रखूँ जो कि मुझे पसंद है इस्लामाबाद में. फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वन स्टोरी अबाउट ओल्ड ट्रेल नंबर 5, जब वो जो चश्मा था ना वो बिल्कुल नीचे तक आता था एंड पीपल कुड गो एंड सिट ओवर देयर. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट F9 पार्क व्हिच इज आई थिंक द आइकन ऑफ इस्लामाबाद नाउ, एंड होपफुली वो इसी तरह प्रिजर्व रहे, तो शायद वही हमारी पहचान होगा इस शहर की. सवाल मेरा ये था कि आर देयर एनी अदर बुक्स, फिक्शन और नॉन फिक्शन अबाउट इस्लामाबाद, और डू यू प्लान टू राइट अनदर वन अबाउट इस्लामाबाद? इस्लामाबाद पे वैसे काफ़ी कम बुक्स लिखी गई हैं. एक ज़बी इस्माइल ने लिखी हैं 2 बुक्स, और एक वो 2 बुनियादी तौर पे, एक का ही फर्स्ट और सेकंड एडिशन है, और एक पुरानी आई वाज एबल टू फाइंड बुक जिसका नाम था बस्ती 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 है, और दैट इज़ रिटन बाय अ लेडी जो कि इस्लामाबाद का जो पहला गर्ल्स स्कूल था उसमें अपॉइंट हुई थी. तो उन्होंने अपनी मेमोइर्स लिखे हैं, एंड प्रॉब्ली दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थर्ड बुक ऑन इस्लामाबाद जो कि मतलब जो मैंने सर्च की. बट येस, आई थिंक देयर आई हैव बीन वेरी फ्यू बुक्स ऑन इस्लामाबाद इन टर्म्स ऑफ मेमोयर. वो बाकी और रिपोर्ट्स वगैरह तो शायद हुई. जी. जी. चलिए मैं कोशिश करूंगा आपकी किताब पढ़ के, क्योंकि मेरी अपनी मेमोरी तो बहुत अच्छी नहीं है. मे बी आई कैन राइट माई नेक्स्ट पीस बेस्ड अपॉन योर बुक. Can we have the lady in the back row and then the gentleman in the blue shirt? Yeah. Hi, thank you. This is Ramna and I'm a journalist. So, as Aisha mentioned, that a lot of people here in Islamabad are basically, who are here for the better opportunities and the job opportunities. So, I have a specific question because, I have not been living here since a long time. So, I have seen a class difference in Islamabad. Even if, we go into F6, there's a community, वहाँ पे Christians की एक बड़ी छोटी सी बस्ती है, and the Mehriya community and stuff like that. So, does your book address the classism which is prevalent in Islamabad? That is my question. उस तरह से नहीं, क्योंकि द होल थीम ऑफ द बुक इज़ मेमोयर्स एंड एनेक्डोटल एविडेंस, और जो इस्लामाबाद के पुराने रेजिडेंट्स थे उनसे मिलके मैंने वही उसमें लिखा कि जगहों से उनकी कैसी एसोसिएशन है, या इस्लामाबाद के अंदर चेंज कैसे उन्होंने देखी. तो दैट वाज़न्ट द सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द बुक एज सच. So, for a person who does not know about it, so can you recommend any particular book to understand, the demographics of the city better? Not really. That's what I was just saying कि उस कॉन्टेक्स्ट में कोई उस तरह से बुक तो नहीं लिखी गई, but there is a possibility कि शायद कोई research reports on which I am not aware of. Sure, thanks. I'm going to take that and ask you a segue question. कोई ड्रामा भी नहीं है PTV का that brings it to life? I think you mentioned Guest House. Not that Guest House particularly has the question that you were asking about stratification, but why do you mention Guest House in your book? I think वो एक आइकॉनिक ड्रामा इस लिहाज से था कि वो शहर की कल्चर को शो करता है. और पहले इस्लामाबाद में जो है ना, ज़्यादातर विज़िटर 2 तरह के होते थे. एक वो लोग होते थे जो अपना कोई काम कराने इस्लामाबाद आते थे, जिनके पास कोई फ़ाइल के पीछे भागने का वो होता था, और दूसरे लोग वो होते थे जो गर्मियों में आते थे, उन्होंने मरी जाना होता था. तो ये 2 किस्म के मेहमान आपके हर घर में पाए जाते होते थे. और जो उसकी तीसरी फॉर्म थी वो ये थी कि अगर आपको कोई इस्लामाबाद में नहीं जानने वाला, तो दैन यू वुड कम हियर एंड लिव इन अ गेस्ट हाउस. तो उस तरह से होटल्स थे तो सही और महंगे थे, तो घरों में ही मतलब गेस्ट हाउसेस was the first Airbnb. हाँ, वो उस लिहाज से यहाँ के. अच्छा जी, my name is Khurram and I work for PTA. It's more like a comment. I don't know actually, since it was not introduced, that what sort of book it is, whether it covers the
cultural history of the city, it covers the political or whatever. I mean, genre of the book. It would have been better if it was introduced in the start. But my comment is that first of all, I should appreciate this is a good effort on part of the writer. कि आपने किताब लिखी है. It was very much needed because this is a kind of, I would feel that this is a kind of unfortunate city. Otherwise, you see other cities like London, Paris, whatever, even in the region, Delhi, you see so many books written by Pakistani author in Delhi, you can find. So in that term, this was an unfortunate city that there was no book written about this city. So I must congratulate you that you have written this book. But I would like you to write more on this. Like, I don't know if you have talked to the people like Mubarak Vik, for instance. He's a very renowned journalist. He has been covering the city, like we talked about the streams, कि किस तरह की थी. Nala Lai was not actually the Nala Lai. It was clean water, waterway. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, I think it need more research. और थोड़ा सा उसको अगर उस एस्पेक्ट से आप मज़ीद अगर एक्सप्लोर करें तो मे बी ए सेकेंड बुक और थर्ड बुक एंड ऑल्सो I don't know if you try to cover that, what would be the future of this city as we talk about the migration to this city. Like, I'm in this city for almost 20 years now, and I used to feel like it's going to be Karachi one day, and we're seeing it now happening. It's look like there's so many street crimes and the problems you see. जो लोग रहते हैं, they know more. So what I'm trying to say is that if there is some analysis on part of some writer that what the future would look like for this city, ये बड़ा important है in terms of economic opportunities, which was the primary reason for the people to come here and work here, and then what would be the the social or cultural future of this city. So I think three parts of the question. Genre क्या है? Have you talked about what's wrong with it in terms of the ecology of it, and then also what do you predict कि 20 maybe 50 तक what's the city going to be? I think genre तो आप इसे anecdotal evidence कह सकते हैं, memoir कह सकते हैं. So that's the sort of broad category of this. As far as how I think इसके ऊपर chapter भी है how Islamabad would look when it's 100 years old. और I think वो कहीं ज़्यादा बड़ा होगा. और that's the one of the sort of points which I am trying to say here कि यार अगर आप इस शहर को बेहतर नहीं कर सकते तो ना करें, मगर इसे ख़राब ना करें मज़ीद. So at least if you just try to keep up the pace of अभी भी जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह ही चला लें तो I think that's going to be a success in itself. But I think Khurram's point is that if you don't do something now or have some kind of intervention now, it will be a problem. Like Lahore mein, I have a friend of mine, Rafi Alam, who does the Lahore Bachao community. जब Canal Road पे जब वो road banyan trees काट रहे थे, so there was a writ in the courts and they didn't cut them. So यहाँ पे भी I think people who care about the city, who care about its essential, identity, should be something. And I think the last of the Mohican was the General Vedat. Yeah, I was going to mention. Community organized against the activities like against the Marglas. वैसे अभी भी लोग हैं that actually are doing it. I know there's an Islamabad wilderness community. They're the people who do the marathons. I think they care about stuff like that. So any idea into what we can start off with, even if it starts with a WhatsApp group? No, I think people are generally vocal about कि दरख्तों को ना काटें, शहरों को वो उसको ख़राब ना करें. बट आई थिंक दोनों ही तरफ ये इन्फोर्समेंट होनी चाहिए. जो रेजिडेंट्स हैं वो भी अपने इलाके का ख्याल रखें. हम अक्सर देखते हैं कि इस्लामाबाद में पहले ही नहीं होता था कि कोई गटर बंद हैं और वो सीवेज जा रहा है. तो एक तो लोगों के अपने एंड पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट देयर इज़ आल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट कि वो भी उसको जो टैक्सेस ले रहे हैं एटलीस्ट उनकी डिप्लॉयमेंट ठीक तरह हो और जो ओवरऑल सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव किया जाए, वेदर दैट इज़ sanitation, water resources, security. So everything is counted in that. So Saud, I'm going to ask you to read maybe one page just to get a sense of the memoirs that we're talking about. Then we'll take two last questions and close. So this is about Siraj Covered Market.
Siraj Covered Market, which was also called Siraj Covered Bazaar, was situated between Embassy Road and ICV. It was a fully covered market keeping in view Islamabad's long, harsh winters. The roof was sloping and structure grey and interior dark. Although it never gave the impression of a very lively place, it was the center of attraction for Islamabad's elite. My friend Akbar and his family, who lived nearby, always bought groceries and meat from the covered market, citing the quality of goods. The shopkeeper had mixed feelings about the market and its ambience as well as the living conditions. Some of them were of the view that it was good to have a shop there due to the fact that chance of getting affected by rains, but it came at the cost of foregoing their luxury of enjoying sun's warmth in the winter. So Islamabad used to be much more colder. इस्लामाबाद का जो predominant weather था वो सर्दी था और अगस्त ऑनवर्ड्स सर्दी स्टार्ट हो जाती थी और टिल अप्रैल एंड वो सर्दी रहती होती थी इन वन फॉर्म और अनदर. और जून जुलाई अगस्त आई थिंक वो यहाँ के गर्म जो थे ना वो मंथ्स थे. But just to give you another sort of glimpse of, I think we talked about this as well, and basically this is about the sort of cultural divide or how people are segregated within this city. So rightly so, for a very long time, it has remained a city of Sarkari Babus. Basically means government officer. The early settlers of the city were all government employees. Interestingly, people living in Rawalpindi never moved to Islamabad in masses, and the primary reason for that was they always found Islamabad to be too expensive and too lonely. Then again, the mood of and the culture of the city was like a government employee, reserved and firm. So that was not a very suitable adjustment option for people who had grown up in Rawalpindi and were related to businesses. As a famous poet, Sarfraz Shahid said, अजब सेक्टर ज़दा से लोग कुछ इस बस्ती में रहते हैं जैसे गोलकीपर अपनी अपनी डी में रहते हैं. चलेगा किस तरह अब इश्क लैला और मजनू में, वो सेक्टर ई में रहती हैं ये सेक्टर जी में रहते हैं. So that was a depiction. Wonderful. All right, we'll take two more questions. I wanted to ask the young ladies in the front or maybe the front row to ask a question because we do want to get the new generation's perspective on it. So beta, do you guys want to ask Uncle any question? Yes, there we go. How many years old is Islamabad? A very, very good question. So the earliest sort of residents, they came to Islamabad in 1961. So actual construction started in 61. So I think people started living in 63 onwards. So if Islamabad was a person, how old would he or she be? About 70ish. Yeah. 61? 60, Yeah. 61. So not young. 60 is very young. मेरा नाम इमरान है. These are my girls. वो छोटी वाली अभी बाहर गई है. So maybe a good question for these kids would be to ask them which city do they like best? Because ये एक दो मुख्तलिफ countries में रहे हैं. So maybe Hania, you take that question. Tell us where you lived and how do you compare that to Islamabad? You can choose other cities other than Islamabad. No pressure. Just because we've written this book doesn't Yeah. mean You might like some other cities. Yeah. So that's Some other city from Pakistan. that's From okay. anywhere. What's your favorite city and why? I'd say I like Ireland, and in Ireland I like Dublin, and apart from that, I'd say Islamabad is my favorite city. Okay, after Ireland, second, not bad. We'll take it. What do you love about Ireland, Dublin? I think I like the people. They're very Like the nice. people. They're kind. Yeah. And Islamabad people kind? No. Yeah. All right. Let's pass the mic to the young lady. My name is Anaya, and my question from you is that since I'm 13 years old, so I haven't seen a lot of the past of the Islamabad. My question is that, like, since Islamabad's city planning was already planned, like how every sector would have a park and how there would be small markets or markers in every sector. So my question to you is, what do you think personally that something that is missing in every sector in its planning? I think the initial concept was Dynapolis कि एक न्यूक्लियस है उसके अंदर ही सब कुछ है और उसके बाद मतलब आपका मेन जो मॉस्क है वो वहाँ पे है एंड देन द मार्केट इज़ देयर
the community center is there. So the concept is there, but what has happened is basically, and we were talking to each other before that, for example, अब मेरे जो घर के पास स्कूल है, मेरे बच्चे उस स्कूल में नहीं जाते हैं. सो अब ये कल्चरली हमने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर दिया. भाई आप जो आइलैंड में अगर रहती हैं तो यू आर सपोज टू बी इन दैट स्कूल, अदरवाइज यू हैव टू गो एंड लिव समवेयर एल्स, अदरवाइज यू वांट. तो वो ये गवर्नमेंट और जो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में अब चीज़ें आ गई हैं, तो उसकी वजह से दैट वुड हैव सेव्ड फ्यूल, lesser pollution, better environment. So lot of things are related to sort of this intermingling of how people interact with state and state infrastructure. Right. Last question and then one last I one. just in the back. wanted to say something as an early 90s kid who's lived here and seen this city evolve, that there wasn't as much stratification till the early 2000s. आपके पास 2-3 ऐसे ग्राउंड्स थे जहाँ डिफरेंट टाइप के लोग खेलते थे. सुपरमार्केट में एक ग्राउंड था, ये जिधर अब बिब्लियो कैफ़े है उसके पीछे बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड था. वहीं पे सब लोग एक साथ, जो थोड़े से लोग इस्लामाबाद में रह जाते थे, वहीं ईद की नमाज़ पढ़ते थे. मक्की मोतमर मस्जिद दोनों के लोग सारे एक ही जगह पढ़ लेते थे, हर टाइप के लोग. और वहीं पे हर तरह की कम्युनिटी जो F6 के लोग होते थे, चाहे वो जहाँ भी रहते हो, वो वहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे. फिर उसको तोड़ के आपने एक वो बड़ा सैनिटाइज सा एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बना दिया, तो उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन हुई. इसी तरह ये लाल क्वार्टर के ग्राउंड थे, वहाँ पे भी हर किस्म के लोग खेलते थे, सब टाइप के. उस पर आपने 7th एवेन्यू बना दिया गाड़ियों के लिए. तो ये बाद में हुआ है. अप अनटिल द 90s शायद इतना G6 F6 का फ़र्क भी नहीं था. आपके जितने लोग थे डिप्लोमेट्स, वो भी इतवार के दिन इतवार बाज़ार में फिर रहे होते थे. अगवानी भी वहाँ पे फिर रहे होते थे इतवार बाज़ार में. ये 90s तक तो ये था, लेट 90s तक. 9/11 के बाद और उसके बाद ये चेंज हुआ है. वरना हर टाइप की कम्युनिटी इतवार बाज़ार में भी फिर रही होती थी, G6 में भी फिर रहे होते थे. इतनी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं थी. दूसरी चीज़ ये कि इन सेक्टर्स जिनको हम F6 और G6 कहते हैं, इनके असल में नाम थे शालीमार 6, रमना 6. ये लोगों को भूल गया है. शायद रमना से तो अब हम एसोसिएटेड भी नहीं है क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान से था, तो हम नाम भी नहीं लेते. लेकिन इनके असल नाम ये थे. ये F6 तो इनकी एक शॉर्ट फॉर्म थी, G6 इसकी शॉर्ट फॉर्म थी. और तीसरी चीज़ ये कि एक और टाइप के भी हमारे पास मेहमान आते थे. जो आपने 2 बताए वो तो आते ही थे. एक तीसरी टाइप ये थी कि बहुत से लोग, क्योंकि कराची के हालात और डिफरेंट जगहों के हालात ख़राब थे, तो बहुत से लोग यहाँ वीज़े लेने भी आते थे, हमारे रिश्तेदार. वो एक तीसरी कैटेगरी होती थी. पूरे 90s में हमारे घर आके बैठ पहले जाते थे. फाइलें जब आपने मेंशन किया तो दैट वाज वीज़ा भी एक फ़ाइल टाइप ही होती हाँ, है. वो वीज़े वाले भी एक आके बैठ जाते थे हमारे घरों में, हम अजाब कर देते थे, आते रहते थे. सो दैट इज सो या 2 questions. पहली बात ये स्ट्रेटिफिकेशन अब हुई है, पहले नहीं थी. दूसरा क्वेश्चन के रिविज़न हुई है हमारी हिस्ट्री की, काफ़ी चीज़ें मिटाई गई हैं, यू नो, हिस्ट्री को भुलाने के लिए डिलिबरेटली. एंड या सो नहीं, आई थिंक बोथ आर फेयर सॉर्ट ऑफ कमेंट्स. और आई थिंक जो आप टाइम बता रहे हैं, ये वो PTV का टाइम था जब एक ही चैनल था और रात को आप वही देखते थे और सुबह स्कूल में वही डिस्कस हो रहा होता था. तो अब तो आपके साथ वाला जो अपने बच्चे हैं, वो भी कोई एक कनाडा के अंदर है मेंटली, और दूसरा जो है वो कहीं और दुनिया के उसमें है. तो आई थिंक टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड हैज़ बिकम अ वेरी वेरी डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर. और जो आप कह रहे हैं वो दैट वाज वेरी करेक्ट. आई थिंक कि ज़्यादा जो इन्फ्लक्स शुरू हुआ है वो 2000 में जब टेलकोज आई हैं, उस वक्त काफ़ी इन्फ्लक्स हुआ बाहर से लोगों का. एंड देन ऑब्वियसली दैट वाज अ मोर एफ्लुएंट प्राइवेट सेक्टर, और फिर शायद कैटेगराइजेशन थोड़ी सी और बढ़ गई. और चीज़ों को का कोई नाम मिटाना कोई डिलिबरेट था या बस एक एवोल्यूशनरी खुद हेजेमनी हो गई, मेजॉरिटी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब इसका ये नाम होगा? अब आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह से एक्चुअली हुआ, क्योंकि उस तरह से तो हमने डॉक्यूमेंट कभी किया नहीं, ना ही हमने. अब खुद ही हम बात कर रहे थे कि 2-3 से ज़्यादा किताबें नहीं लिखी गई. बट या आई थिंक ये एक अब जो नाम रमना और वो वाला था, आई थिंक दैट वाज देयर इन वेरी अर्ली डॉक्यूमेंट्स के. ओवरऑल आई थिंक हार्मनी हो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो शायद आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर नहीं रही. जी स्टेशंस का नाम अभी भी शालीमार पुलिस स्टेशन जी और रमना पुलिस स्टेशन जी है. वो नहीं चेंज हुआ. जी.
Okay, ji. So it's rather a comment, and the reason I'm giving because I've listened to all of the comments, and over the years I've been living in, I've lived in Australia and I've lived in Pakistan as well, and I'm born and bred over here in Islamabad. So I have seen a lot of things from my childhood over here, and then when I went to Australia, and I can see that there is a lot of similarity in construction between these two cities, like Adelaide अगर आप देखें या बाकी चीज़ें देखें. कैनबरा भी मेरा ख्याल है इसी के तर्ज पे बना हुआ है. Yes, so अगर आप जकैंड्रा ट्रीज को ही देख लें, so that is one of the most beautiful thing in Islamabad. So instead, what has changed, we have seen that there are a lot of things which are being done by the private enterprises, like जकैंड्रा parks हैं, plantations हैं, जो over the years अगर construction हुई भी है तो उसके मुकाबले में हमने बढ़ाई भी है. तो वो जो बात आप कह रहे हैं शालीमार, still IMCG F62 is being known as Shalimar F62, and the name still remains with a lot of things. ओवर द ईयर्स चूँकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें बहैसियत एक सिटीज़न के कंट्रोल में शायद नहीं हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें CDA की भी ऐसी ओवरलुक कर देते हैं जो कि CDA बहुत काम कर रहा होता है, जो हमें शायद नज़र आते हैं कि ये नहीं कर रहे. Still far better from many other cities, I think Islamabad still has that जैसे कहते हैं ना ब्यूटिफिकेशन कंपोनेंट है. अगर आप इसकी वैसे देखें, इसकी प्लानिंग देखें, इसकी बाकी चीज़ों में देखें, सो ठीक है चेंजेस तो आती रहेंगी ओवर द ईयर्स, शायद ये वैसा ना भी रहे, मगर स्टिल अगर आप इस शहर में एक दफ़ा रह चुके हो तो मेरे ख्याल में आप जितनी भी दुनिया घूम लें, आप फिर इस शहर में ज़रूर आएंगे और फिर कहेंगे कि ये उससे थोड़ा सा बेहतर ही है जो कि पहले था. It sounds like a bit of a lore. Islamabad, you know. What would you like to say to that? I think that's a fair sort of observation, and the reason for that is कि जाहिर है हर शहर में जाके आपको एक फील आती है. जैसे आप कराची में किसी भी उसमें जाएं तो you'll feel that you are in Karachi. Same is true for Lahore. तो I think वो एक DNA हर शहर का होता है. बट वो DNA शायद पुराने इस्लामाबाद में है, मगर अगर आप दूर चले जाएं तो वो you won't get that feeling क्योंकि proximity to the Magla Hills and the overall environment and the trees, तो वो है. Yeah, and to point out the fact कि CDA की काफ़ी अच्छी चीज़ें हम overlook कर जाते हैं. CDA ने एक निजी कंपनी के साथ अतातुर्क एवेन्यू पे पाकिस्तान की फर्स्ट प्लास्टिक रोड बनाई थी, which is a very innovative concept where they're focusing on plastic circularity and modeling that. तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं आई थिंक. आपको मैं इफ़ आई कैन पुट यू बोथ ऑन द स्पॉट, आप दोनों इस्लामाबाद से हैं या आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इस्लामाबाद के बारे में? मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब करती थी तो 1977 में यहाँ आई थी, एंड आफ्टर रिटायरमेंट आई डिसाइडेड टू स्टे ऑन. ओके, उसका क्या लाइक व्हाट मेड यू स्टे ऑन? व्हाट मेड मी स्टे ऑन, ये द नेचुरल ब्यूटी. आई लाइक टू वॉक, और ये बरगला हिल्स में हाइकिंग. लाहौर में वो है नहीं. जी बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक इट्स अ मेजर रीज़न हाँ फॉर मोस्ट पीपल. और जब लाहौर की एयर क्वालिटी ख़राब हुई थी तब इस्लामाबाद वाज स्टिल क्वाइट इंटैक्ट. इस्लामाबाद यूज्ड टू बी मच बेटर, क्लीन एंड नीट. अब नहीं रहा. जी, थैंक यू. कोई और कमेंट आप देना चाहें? लाइक 95 में वो किए थे. It feels like home now. Okay. My name is Ramna, and everyone was talking about, you know, Ramna wali जो सारी चीज़ें change हुई हैं. So a lot of people even think that I am Bangladeshi. So I have that point in my mind that someone would be able to, you know, address this thing, that why this, you know, particular thing Ramna is associated with the East Pakistan, या जब अलग हुआ तो फिर ये जो चीज़ें रमना के नाम पर थी वो बदली. I mean, there are few places जो अभी भी हैं, बट जो पुरानी हिस्ट्री है आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे आज पता चला. सो इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू एड्रेस दैट. आई थिंक ड्यूरिंग माई कॉन्वर्सेशन विद एक साहब जो पुराने इस्लामाबाद के हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था, इवन आई डिडंट नो दैट, कि शालीमार क्योंकि लाहौर में है वेस्ट पाकिस्तान में, और रमना जो है वाज अनदर सॉर्ट ऑफ पार्क इन ईस्ट पाकिस्तान, दैट्स वाई उसका नाम रमना रखा गया था. तो बट आई डोंट नो, शायद उसके पीछे ही इंटीग्रेशन या कोहेजन या नेशनल सॉर्ट ऑफ सॉलिडेरिटी वुड हैव बीन एन इशू एट दैट टाइम, बट perhaps that faded away after a while. So I know आपके बहुत सारे सवाल होंगे, questions होंगे. Maybe we can do it through the one-to-one with the author. But Saud, I wanted to thank you on behalf of everybody here
for writing this book on Islamabad and for giving Islamabad an identity and giving us an identity. And if somebody tells us, why do you like this city, we can just give them this book instead. So thank you so much, and thank you for being at this event. Bahut shukriya. Thank you.